بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 ستمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ 11 مئی سے لاپتہ عمران ریاض خان سینئر اینکر ہمارے بھائی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، خود ہی اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ 25 مئی سے 25 ستمبر تک 11 مئی سے 25 ستمبر تک وہ کہاں پر تھے، کن حالات میں ان کو رکھا گیا اور کیا صورتحال ہے، وہ ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور چونکہ لاہور ہائی کورٹ میں کل سماعت ہونے جا رہی تھی 26 ستمبر کو، اور آخری موقع دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے، اور اس کے بعد یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں دو مختصر سے کیسز آپ کے ساتھ شیئر کر کے پھر ہم عمران ریاض خان کی ریکوری کے حوالے سے آئیں گے۔ اب آگے کیس میں کیا ہوگا، اغوا کاروں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی، اور سیالکوٹ پولیس کی جانب سے ایک معنی خیز سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے عمران ریاض کی ریکوری کے بعد اور گھر پہنچنے کے بعد، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نواب شاہ میں بجلی چوری میں معاونت پر جو وابڈا کے افسران ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور ان کو عہدوں سے معطل کر دیا گیا ہے۔ 2 ہفتوں میں بجلی چوری میں صرف نواب شاہ میں 51 مقدمات درج ہوئے اور 4 افراد گرفتار ہوئے، جبکہ بجلی چوری میں معاونت پر 2 SDOs اور 2 لائن مینوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیسکو گلزار دستی کے مطابق ہیسکو سرکل میں 2 ہفتوں سے بجلی چوری اور بل نادہندگان کے خلاف مہم جاری ہے، اور اصل میں اس میں جو چونکا دینے والی چیز ہے وہ ہے وابڈا کے افسران کا ملوث ہونا۔ جتنی بھی اس طرح کی کارروائیاں کی گئی ہیں بجلی چوروں کے خلاف، وہاں وابڈا کے افسران اس میں ملوث پائے گئے ہیں۔ صرف آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب تک ہمارے اداروں کے لوگ اگر بجلی چوری کی بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ہمارے وابڈا کے افسران کا ہے۔ جب ایرانی تیل سمگلنگ کی بات ہوئی تو بتایا گیا کہ PSO کی گاڑیاں بھی ایرانی سمگلنگ میں ملوث ہیں، تو جب تک اس متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا یا ادارے کا بندے انوالو نہ ہوں تو کوئی بھی جرم ہو نہیں سکتا۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں جو جرم ہوتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں جی کہ ڈالر سٹاک کیا جا رہا ہے یا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، اس میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے افسران نظر آتے ہیں۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی نے جب منی لانڈرنگ کی تو ان کی ساری منی لانڈرنگ میاں منشا کے جو MCB بینک ہے اس کے تھرو ہوئی، اور تمام افسران 164 کا بیان دینے بھی عدالت میں پہنچے تھے۔ پھر اگلے دن ان کو جو بیان نہ دینے دیا گیا، اور پھر وہ 25 افسران تھے MCB بینک کے، اور پھر انہوں نے بیان نہیں دیے تھے۔ 164 کے وعدہ معاف گواہ بننے آئے تھے کہ یہ آتے تھے ہمارے پاس مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والا، یہ آ کے ہمیں کہتے تھے کہ جی یہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے یا یہ TTs اور یہ ساری چیزیں، اور اوپر سے ہمیں شریف خاندان کی کال آتی تھی اور ہمیں کرنا پڑتا تھا۔ پھر اور اس کیس میں جو وائس پریزیڈنٹ تھے MCB بینک کے وہ گرفتار بھی ہوئے تھے، اور بعد میں وہ بھی چپکے سے رہا ہو گئے چونکہ میاں منشا کا بینک ہے، اور جن افسران نے شہباز شریف کے خلاف بیان دینے تھے وہ بھی سارے پیچھے ہٹ گئے، اور ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر کا کہنا تھا کہ 814 غیر قانونی کنیکشن والے صارفین سے 2 کروڑ 83 لاکھ روپے جرمانہ، اور بجلی صارفین سے بقایا جات کی مد میں 23 کروڑ 88 لاکھ روپے وصول کیے گئے ہیں۔ اور سپرنٹینڈنٹ انجینئر ہیسکو نے بتایا کہ ٹنڈو آدم میں چوری پر اسٹیل فیکٹری کی بجلی منقطع کر کے 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ بجلی کی چوری میں ملوث 380 کنیکشن صارفین پر مقدمہ اندراج کے لیے ہم نے خط لکھ دیا ہے، اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کی گئی، اور اس میں کہنا ہے کہ جی جو بااثر لوگ ہیں، بااثر لوگ سندھ کے کون سے ہیں، وہی پیپلز پارٹی کے جو سیاستدان ہیں، وہ جو بااثر لوگ ہیں ان کی جانب سے ہی یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور ان کی جانب سے ہی یہ بجلی چوری۔ اور تو اور گجرات میں کوئی کبڈی میچ تھا، اور اس کے لیے کنڈے ڈال کے بجلی چوری کر کے جو گجرات انتظامیہ ہے، سرکاری انتظامیہ، وہ جنریٹر کا بندوبست نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے کنڈیاں ڈال کے میچ کے لیے وہاں پہ جو لائٹس وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا، اور وہ باقاعدہ طور پر ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ وہ جو کنڈے ڈالے گئے، جو بجلی چوری سرکار کر رہی تھی، وہ بھی تو عوام کے اوپر پیسہ پڑنا ہے۔ اب پھر بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، میرے خیال میں 3 روپے، تو عوام کے لیے جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے اور ناممکن بنا دیا ہے۔ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 10 रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। सिंध पुलिस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 10 रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली है। साबिक एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर और रहनुमाओं से 38 अहलकार वापस लिए गए हैं और अहलकारों को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में भेजा गया है। सरदार मोहम्मद बख्श महर से 12 अहलकार, जाम इकरामुल्लाह धारेजो से 6 अहलकार, पीटीआई के साबिक मुनहरफ रुकन सिंध असम्बली शहरियार खान शर से 3 अहलकार, रमेश लाल से 1 अहलकार, पीटीआई रहनुमा बाबर लौंड से 2 अहलकार, खालिद लौंड से 3 अहलकार, जाम मेहताब हुसैन दाढ़ से 2 अहलकार, इम्तियाज़ हुसैन शेख से 1 अहलकार और मुमताज़ चांग से 8 पुलिस अहलकार वापस लिए गए हैं। और साथ अब तो ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान वज़ीर आला सिंध ने डायरेक्ट गोली मारने का हुक्म दिया है जो डाकुओं को। अब ऐसी को अगर ख़बर है तो मैं नहीं समझता कि निगरान वज़ीर आला सिंध ऐसी को बात कर सकते हैं, और ये फ़ेक ख़बर ही होगी चूँकि वो एक साबिक जज हैं। और इस तरीके से तो आपने पुलिस को इख्तियारात दे दिए तो उनके हाथ तो जो चढ़ेगा। आपने पहले 9 मई के वाक़यात में देख लिया है कि एक बंदे को गिरफ़्तार करने जाना होता था, पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद करके आते थे, और फिर जो बच्चों पर असर पड़ा और जिसकी वजह से अम्मार की जान चली गई। तो इस वजह से पुलिस को अगर आप ख़ुद कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये तो फिर चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। बहरहाल आज की जो सबसे और इस परेशान कुन हालात में, अफसरदा हालात में, और आप कह सकते हैं मायूसियों के आलम में एक और अंधेरों में एक रोशनी की किरण फूटी है, और वो इमरान रियाज ख़ान की रिकवरी है। बहुत अहम डेवलपमेंट है और मैं समझता हूँ कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अब पहले हम अरशद शरीफ को खो बैठे हैं और किसी और को खोने की सक्कत नहीं थी, और इमरान रियाज ख़ान के हवाले से पूरी कौम परेशान थी, उनके लाखों चाहने वाले परेशान थे, और वो एक ईमानदार और एक मेहनती साफ़ी हैं। और उनको 11 मई को एयरपोर्ट सियालकोट एयरपोर्ट से पुलिस यूनिफॉर्म में गिरफ़्तार किया गया। 3 MPO में उनको जेल भेजा गया, और जेल भेजने के अगले दिन ही कहा गया जी कि उन्होंने कोई बयान हल्फी लिख दिया है, और बयान हल्फी लिखने के बाद एफिडेविट लिख दिया है और उनको हमने रिहा कर दिया। वो CCTV फुटेज जो हमने चीफ जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में देखी, उसमें देखा जा सकता है कि पहले उनको जब जेल से एक शख्स लेके आ रहा है पुलिस वाला, वो भी दिखाया जाता है, फिर जब गेट से बाहर छोड़ा जाता है तो वहाँ पर 2 गाड़ियाँ पहले खड़ी थीं और नकाब पोश खड़े थे, और उन्होंने उनको पिक किया और गाड़ी में बिठा दिया। और वो जब बिठाया गया तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी थी और पुलिस भी होती है, लेकिन किसी ने जब वो नकाब पोश थे तो किसी ने कोशिश तक ना की कि वो उनके पीछे जाएं, चूँकि सारे का सारा मनसूबा साजी थी। अब उस मंसूबे के बाद और ये बात अमीर भट्टी साहब ने की कि ये तो पूरी मंसूबा साजी से हुई। फिर उस वक्त जो इमरान रियाज ख़ान के पहले वकील थे अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा था कि जनाबे वाला ये जो डाले और गाड़ियों के नंबर नज़र आ रहे हैं और नकाब पोश आपको नज़र आ रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने लाहौर में इमरान रियाज ख़ान की इस अगवा के बाद छापा मार कार्रवाई की है। और कहने वाले ये भी कहते थे कि उसी दिन दोपहर को, या जिस दिन उनको अगवा किया गया शाम को जेल के बाहर से, उसी दिन दोपहर को उनके घर छापा मार कार्रवाई की गई और फिर उनको अगवा किया गया। तो अज़हर सिद्दीक़ ने कहा कि अब ये गाड़ियों के जो हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें ये गाड़ियाँ इनके घर के बाहर नज़र आती हैं, वो देख लें और वो देख लें तो सेम गाड़ियाँ और सेम नकाब पोश हैं। तो ये सारी की सारी पुलिस की और इनकी मिली भगत है। बहरहाल फिर ख़बर आई जी कि अफ़गानिस्तान से कोई टेलीफोन का जो है वो राब्ते हुए हैं, और फिर कहा गया कि जी वो अफ़गानिस्तान चले गए हैं। इसी तरह IG पंजाब हर डेट ऑफ हेयरिंग पर लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे ही आकिया में कहानियाँ सुनाते थे और ऐसे ही आके अदालत को बताते थे जी कि वर्किंग ग्रुप बन गया। अब पता सबको था कि किसके पास है और कब, जब उनका मूड बनेगा वो देंगे, जब वो सेटिस्फाई होंगे वो देंगे। और अदालत को भी इस बात का इल्म था। अमीर भट्टी साहब से भी IG पंजाब ने चैम्बर में मुलाकात की थी, उनको सारी तफसीलात बताई थी। अमीर भट्टी साहब भी जानते थे कि इस मामले को हम तरीके से हैंडल करेंगे तो तब ही जाके ये मामला हल होना है। और जितनी हमारी अदालतें कमज़ोर हो चुकी हैं, आइन मुअत्तल हो चुका है, कानून की पासदारी नहीं है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अहकामात नहीं माने जा रहे थे उस वक्त, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ठंडे तरीके से इन सारी चीज़ों को डील किया जाता रहा। और जो लास्ट 13 सितंबर को तारीख़ थी, 18 सितंबर को, उसमें अदालत की जानिब से एक मौका दिया गया था पुलिस को, और पुलिस ने कहा था कि ये 20 सितंबर को थी
13 को थी और उसके बाद 20 थी। 20 सितंबर को जब अमीर भट्टी साहब की अदालत में समाअत थी तो अमीर भट्टी साहब ने कहा मुझे तो अब एतमाद उठ गया है और मुझे तो कोई उम्मीद बर नहीं आती कि आप कोई कार्रवाई करेंगे या आपने कोई बड़े पैमाने पर इस सारे मामले को हैंडल किया है। तो उस पर फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि हम इन सारे मामलात को देखेंगे आइन और कानून के मुताबिक। और आपको उन्होंने जो वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से कहा गया था कि जी आप इनको 24 घंटों का टाइम दे दें और 24 घंटों से ज़्यादा टाइम ना दीजिएगा और मेहरबानी करके इनको आप हर सूरत कहें कि जी वो रिकवर करवाएं। अब हमारा सब्र भी जवाब दे गया है। अदालत ने उनको 6 दिन का टाइम दिया कि 26 सितंबर को हर सूरत अगर आप उनको या रिकवर करें नहीं तो आपके ख़िलाफ़ फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई। ये पहला ऑर्डर था जिसमें अमीर भट्टी साहब ने कहा कानून के मुताबिक फिर कार्रवाई होगी और फिर न कहना। तो उस पर फिर ये डेवलपमेंट हुई कि 25 सितंबर की अलग सुबह जो हैं वो हमारे इमरान रियाज़ ख़ान भाई वो अपने घर तशरीफ़ ले आते हैं, वो ख़ुद घर पहुंच जाते हैं और 11 मई से लापता इमरान रियाज़ ख़ान 25 सितंबर को अपने घर पहुंच जाते हैं। पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है। पुलिस की जानिब से ये लिखा जाता है कि जी जो इमरान रियाज़ ख़ान है सीनियर जर्नलिस्ट एंकर इमरान रियाज़ ख़ान हैज़ बीन सेफली रिकवर्ड। अब रिकवर्ड से मुराद ये होता है कि हमने कहीं से बायाब करवाया है। तो वो कहाँ से आपने करवाया, फिर आप तफसील दें कि वो कहाँ थे, किसकी कस्टडी में थे, किस ने अगवा किया हुआ था, कोई डाकू थे, कोई चोर थे, कौन थे। अगर आप कह रहे हैं कि जी उनको हमने महफूज तरीके से रिकवर कर लिया है और ही इज़ नाउ विद हिज फैमिली, तो फिर बताया जाए कि वो ये सारा कुछ कैसे हुआ है। और कहते हैं जी कि साफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान बायाब हो चुके हैं और वो अपने घर पहुँच चुके हैं। तो वो कैसे रिकवर्ड हुए। रिकवर्ड का वर्ड आपने इस्तेमाल करके ख़ुद, और ये सियालकोट पुलिस का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उससे ये ख़बर शेयर की गई है। तो फिर किसके पास थे, फिर बताया जाए। अब कल जब अदालत में समाअत होनी है तो अदालत में चूँकि वहाँ सिर्फ यही था कि उनको गैर कानूनी हब्स बेजा में रखा गया और उनको रिकवर किया जाए। वो रिकवर हो चुके हैं, वो अदालत में स्टेटमेंट दे देंगे। पहले भी बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हुए हैं और अदालतों को भी पता होता है 199 में उनके पास अख्तियारात भी बड़े होते हैं, लेकिन चूँकि इन चीज़ों को आगे चलाना नहीं है तो अदालत फिर इस केस को डिस्पोज़ ऑफ कर देगी इमरान रियाज़ ख़ान की रिकवरी के बाद। अब ये इमरान रियाज़ ख़ान विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी तो उनको बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए और इन चीज़ों को बिल्कुल खामोश रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से और बड़ी तकलीफ़ दे, आपको याद होगा जब बैनुल अक़वामी इदारे कहते थे कि इमरान रियाज़ ख़ान की डेथ हो चुकी है और उनको जब हस्पताल लाया जाता था तो बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुज़रा है, उनकी फ़ैमिली ने बहुत तकलीफ़ दे वक्त गुजारा है। उनको कुछ टाइम देना चाहिए और फिर वो बताएँगे कि 11 मई से 25 सितंबर वो कहाँ थे, और फिर उनके बोलने के अंदाज़ से भी पता चल जाएगा कि क्या कंप्रोमाइज़ करके ही उनको रिहाई मिल सकी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।